Good morning, sir. ओके सो स्क्रीन एंड ऑडियो क्लियर है। स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes. ऑल राइट। So in the last lecture we had discussing about the SR flip flop, and we have already completed the block diagram of SR flip flop, as well as we are designing a truth table for SR flip flop. So today we will complete the truth tables. Okay. SR flip flop. For SR flip flop. Okay, so in SR flip flop, we already seen that there are two inputs S and R. First, we have taken S and R, then clock pulse. So let's take a clock pulse as the input signal, then S as the input signal, then present present state. We will denote it by Q of T. Present state, and the next state we will denote it Qt plus 1, which is next state. So if clock pulse is falling edge, we have seen that there is no change in present state and next state as well as. We have already seen, you can see in this diagram into table, if the clock pulse is falling edge, that means if clock pulse goes to 1 to 0, then that means there is no changes in the present state as well as the next state. It doesn't matter what is the input of S and R, there is no change in present state and next state. It always remains 0 in all the cases. Right? तो changes जो होते हैं that will only
occur if the clock pulse is rising edge from 0 to 1. We call it a rising edge of a clock pulse. But there is no change happened in the falling edge of the clock pulse. Right? So ये चारों कंडीशंस को हम एक स्टेप में यहाँ पे नोट करेंगे और वो स्टेप होगी इफ द क्लॉक पल्स इज इन फॉलिंग एज देयर इज नो चेंज इन एस आर फ्लिप फ्लॉप. So if S is cross, that means it may be 0 or 1. R cross, that means it may be 0 or 1. Present state will remain 0 and next state will remain 0. Suppose present state is 1, then next state will also remain 1. There may be two conditions. If the flip-flop contain 0 in as a previous state, after calculation of input S and R, there is no change in the next state. So 0 will remain 0 and 1 is remain 1. So we can change it like whether we store 0, it will remain 0. Whether we store 1, it remain. So 0 or 1 in case we can directly write cross. It may be 0 or it may be 1. So there is no change in the present state as well as next state. But there may be change if the clock pulse is in rising state. So now we will look out at the rising of the clock pulse. In the rising state of the clock pulse, what it would change. This is the rising edge of clock pulse. It means clock will goes 0 to 1. Now there may be changes. If S is 0, R is 0. So let's write it. If S is 0, R is 0, if present state is 0, next state will remain 0. We will also implement these things by using circuit. First, we will look out the truth table. What are the possible conditions occurring in the SR flip-flop? Then we will implement all the conditions in flip-flop. So if S is 0, R is 0, present state is 0, then the next state will remain 0. Similarly, if S is 0, R is 0, present state is suppose 1, then next state will remain 1. The first condition, when the input S is 0, R is 0, if you store 0 in the flip-flop, after calculation there is no changes, the next state will be remain 0. And suppose if the clock pulse, if the flip-flop store 1, then after calculation the next state become 1. So there is no changes. So we simply write output in that case no change. 0 remains 0, as you can see here. 1 remain 1. So we can call it no change in the flip-flop. This is the first condition.
Now let's talk about the second condition. If clock pulse is again in the rising edge, if we provide the input S as 0, R as 1, if we store the present state is 0, present state of flip-flop is 0, then the next state will reset by 0. Because S is 0, then the flip-flop will reset by 0. Similarly, if S is 0, R is 0, the previously data which is stored in the flip-flop is suppose 1. We always consider two inputs that stored previously in the flip-flop, whether it could be a 0 or 1. So if previously stored 0, then it will remain the set 0, reset by 0. If it is 1, again it is reset by 0. कि यहाँ पर ये कंडीशन आती है कि S की वैल्यू अगर 0 है तो आप फ्लिप फ्लॉप में 0 रखोगे तो भी 0 ही आंसर आने वाला है, और अगर आप 1 रखोगे सो अगेन आंसर हमें 0 ही मिलने वाला है, क्योंकि ये होता है सेट और ये होता है रिसेट। अगर रिसेट की वैल्यू कोई भी वैल्यू पड़ी हो, रिजल्टेंट आउटपुट जो नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट होगा वो रिसेट ही कहलाएगा। सो इन दैट केस we got 0 0 next state, this 0 set as reset. So in that case we can say our flip flop is reset. Now the third condition, third situation is again if the clock pulse is in rising edge, we provide S is suppose 1 and R is 0. If we store present state as a 0, present state of flip-flop is, then the next state will change it by. Similarly, if the previous state of the flip-flop is 1, then the next state of the flip-flop will become 1. Cases by the previous state is 0, it changes that by 1. And similarly, if the state is 1, then again it changes the value by 1. So finally we can say if S is 1, R is 0, then flip-flop becomes set. So this condition will reset the will set the flip-flop. And simply you can see in the truth table, if S, that means the next state will be set condition. So अगर S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0 है,
तो S वाला सिग्नल 1 है जो कि सेट, तो अल्टीमेटली फ्लिप फ्लॉप सेट कंडीशन में ही आएगा। इससे ये मैटर नहीं होगा कि फ्लिप फ्लॉप में प्रीवियस स्टेट में क्या वैल्यू थी। अगर 0 है देन अगेन इट विल सेट बाय 1, और अगर प्रीवियसली 1 स्टोर्ड है तो भी वो सेट कंडीशन में ही आएगा। और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप की सेट कंडीशन। नाउ द फोर्थ कंडीशन, again suppose clock pulse is in rising edge, we are providing the input x as a 1 and r as a 1. If both signal we provided high, that means 1, then what about the present state and next state? Present state may be 0 and present state may be 1. So what happened with the present state, right? Now we will look at, if present state 0, the next state is undetermined. And if present state is 1, next state will again undetermined. That means यदि दोनों सिग्नल S और R में आप हाई प्रोवाइड कर देते हो, 1 1 प्रोवाइड करते हो, तो फ्लिप फ्लॉप ना ही सेट होता है ना ही रीसेट होता है। ये सिचुएशन RS फ्लिप फ्लॉप की प्रोहिबिटेड कंडीशन बनाती है, जो कि रेस कंडीशन कहलाती है। So this is called the race condition of SR flip flop, which is also known as prohibited condition. So this is the overall calculation of SR flip flop. Now we will implement this present state and next state outputs by using the सर्किट डायग्राम। हम जब इसे नो चेंज लिखते हैं तो क्या रियली में सर्किट्स हमें नो चेंज बताता है? क्या वो रिसेट होता है, सेट होता है, रेस कंडीशंस आती है? क्यों फ्लिप फ्लॉप स्टेबल नहीं हो पाता है, जिसको हम रेस कंडीशन कहते हैं? रेस कंडीशन बेसिकली किसी भी फ्लिप फ्लॉप में तब आती है जब उस ट्रांजिस्टर के अंदर प्रॉपर उसका सैचुरेशन वाला जो वोल्टेज है वो अप्लाई नहीं हो पाता है। जैसे मैंने आपको बताया था इन द लास्ट लेक्चर कि फ्लिप फ्लॉप अल्टीमेटली एक ट्रांजिस्टर होते हैं, और अगर हम ट्रांजिस्टर में, जो कि एक ट्रांजिस्टर की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 5 वोल्ट, अगर उस ट्रांजिस्टर में 5 वोल्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो ट्रांजिस्टर को हम सैचुरेटेड मानते हैं। और फ्लिप फ्लॉप भी ट्रांजिस्टर से मिलकर बने हैं, तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो फ्लिप फ्लॉप 5 वोल्ट से 5 वोल्ट से सैचुरेट हो जाएगा, या तो वो 0 वोल्ट से सैचुरेट होगा। यदि ट्रांजिस्टर में 5 वोल्ट आ जाता है, इस कंडीशन को हम सेट कंडीशन बोलते हैं। और अगर ट्रांजिस्टर में 0 वोल्ट आता है, 0 वोल्ट से अगर वो सैचुरेशन में आ जाता है, दैट विल बिकम द रीसेट कंडीशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। और अगर दोनों एस और आर 1 1 यदि हम प्रोवाइड करें तो ट्रांजिस्टर ना ही सेट हो पाता है ना ही रीसेट हो पाता है, क्योंकि दोनों ही सिग्नल 1 1 है। अब एस और आर दोनों सिग्नलों के बीच में रेस लगती है कि कौन पहले इस ट्रांजिस्टर को सैचुरेट करेगा, और अल्टीमेटली ये होता है कि दोनों ही प्रोहिबिटेड कंडीशन में आ जाते हैं, रेस कंडीशन में आ जाते हैं, और ये अनडिटरमाइंड कंडीशन बन जाती है। ना ही ट्रांजिस्टर में 5 वोल्ट जा पाता है और ना ही ट्रांजिस्टर में 0 वोल्ट जा पाता है। सो इसलिए इस कंडीशन को एक स्पेशल कंडीशन माना गया। एस इज सपोज 1 एंड आर इज सपोज 1, देन ट्रांजिस्टर में कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं हो पाता है, और इसी को नाम दिया गया रेस कंडीशन। यहाँ पे रेस वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि एस और आर दोनों सिग्नल में एक रेस लगती है ताकि वो ट्रांजिस्टर को सैचुरेट कर पाए।
बट ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि दोनों में से एक सिग्नल का लो होना जरूरी है। अगर S इक्वल टू 1 है, R इक्वल टू 0 है, तो ट्रांजिस्टर सैचुरेट होगा 5 वोल्ट से। तो इस कंडीशन को रेस कंडीशन बोला गया, जो कि कोई भी आउटपुट हमें नहीं बता पाता। इसलिए SR फ्लिप फ्लॉप का ये डिसएडवांटेज बन जाता है कि S इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 1 पर फ्लिप फ्लॉप कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर पाता है। तो केवल इसके 3 इनपुट ही सिग्निफिकेंट में रहेंगे। दैट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, राइट। अब हम लोग इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं और इन्हीं इनपुट को हम उस सर्किट पर अप्लाई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से नो चेंज कंडीशन आती है, रिसेट कंडीशन आती है, सेट कंडीशन आती है और रेस कंडीशन आती है। So let's design the diagram first. Then we provide inputs in S और R respectively जो हमने ट्रूथ टेबल में बनाया है। So SR flip flop logic diagram by using, इसे हम नैंड गेट और नॉर गेट दोनों गेट से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक गेट से इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ, आपको दूसरा गेट आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। सो लॉजिक डायग्राम बाय यूजिंग नॉर गेट, क्योंकि यूनिवर्सल गेट है। नैंड और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि इन गेट की हेल्प से हम सभी लॉजिक के जितने भी बेसिक गेट्स हैं वो सभी हम डिजाइन कर सकते हैं। सो हम लोग यूज कर रहे हैं नॉर गेट, राइट। ये है हमारा एस इनपुट, ये है हमारा आर इनपुट, राइट। नॉर गेट हमें डिजाइन करना है, इस तरह से नॉर गेट होगा। और के आगे अगर हम बबल लगा देते हैं सो इट बिकम नॉर गेट। सो ये दो नॉर गेट हमने डिजाइन किए। Now this is suppose S and this is suppose R signal। कनेक्शन आपको ध्यान से देखना है। इसका आउटपुट होता है यहाँ पर, ये है नॉर्मल आउटपुट और हर एक फ्लिप फ्लॉप में उसका कॉम्प्लीमेंट भी होता है। We already studied that every flip flop having two output, normal and complement। कॉम्प्लीमेंट का जो कनेक्शन होगा और नॉर्मल का कनेक्शन किस तरह से करना है वो आपको यहाँ से ध्यान से देखना है। कॉम्प्लीमेंट का कनेक्शन पहले नॉर गेट में जाएगा, इस तरह से, और जो नॉर्मल का कनेक्शन है वो सेकेंड नॉर गेट में आपको एज ए इनपुट देना है। तो इस तरह से हर एक नॉर गेट में दो दो इनपुट चले जाएंगे, राइट। अब हम इसे इनपुट प्रोवाइड करने स्टार्ट करते हैं और फिर कंडीशंस देखते हैं क्या S इक्वल टू 0 और R इक्वल टू 0 पर नो चेंज कंडीशन आती है
यदि आती है दैट मीन्स हमारा ट्रूथ टेबल सही है. सो लेट्स स्टार्ट द एग्जीक्यूशन. s इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 0 पर हम लोग अप्लाई करते हैं. s इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0. ये है फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट और ये है फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट. सॉरी, ये है फ्लिप फ्लॉप के प्रेजेंट स्टेट और इसी में जो इसकी अगला आउटपुट जनरेट होगा वो बनेगा नेक्स्ट स्टेट और उसके रिस्पेक्ट में उसके कोरिस्पॉन्डिंग इसका कॉम्प्लीमेंट भी जनरेट होता जाएगा. सो दोनों को हमें बैलेंस करना है. हम फ्लिप फ्लॉप में इनिशियल वैल्यू कुछ लेके चलते हैं. लेट सपोज इट इज 0. ये है 0, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट स्टेट. इसको मैं डिनोट करता हूं P से, प्रेजेंट स्टेट. अब इसके बाद जो वैल्यू जनरेट होगी वो होगी नेक्स्ट स्टेट. तो हमें देखना है अगर हमने 0 यहाँ पे स्टोर किया हुआ है जो किसी प्रीवियस कैलकुलेशन का रिजल्ट हो सकता है जो कि हमने मेमोरी एलिमेंट में स्टोर किया था, इसे हम प्रेजेंट स्टेट कहते थे. सो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में अगर कोई चेंज नहीं है तो वी विल कॉल इट नो चेंज कंडीशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. अगर यदि 0 है तो वो 0 ही रहेगा. अगर हम प्रेजेंट स्टेट में 1 रखते तो वो 1 ही रहता. सो अभी फिलहाल हमने Q इक्वल टू 0 दैट इज प्रेजेंट स्टेट इक्वल टू 0 यहाँ पे रखा हुआ है. अगर यहाँ पर नॉर्मल आउटपुट 0 है सो कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे 1 मिलेगा. राइट. अब हम इसमें कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. ये जो कनेक्शन है यहाँ से हमें ये वैल्यू को पिक करना है. दैट मीन्स अगर ये 0 है, यदि हम पहले नॉर गेट में इनपुट देखें तो दो इनपुट है यहाँ पर. एक है s इक्वल टू 0 और यहाँ से दूसरा इनपुट जा रहा है 1. 0 एंड 1. इस नॉर गेट में दो इनपुट जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू से 1 और s वाली वैल्यू से 0. सो इफ s इज 0 एंड 1, नॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो पहले आप और करिए. 0 प्लस 1 का और ऑपरेशन होता है 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो तो 0. तो यदि हमने 0 लिया था तो उसका जो नेक्स्ट स्टेट है, यदि हमने 0 लिया हुआ है प्रेजेंट स्टेट, तो नेक्स्ट स्टेट भी हमारे पास 0 ही जनरेट हुई है. फिर से मैं एक बार करके बताता हूँ. s इक्वल टू 0 है और q डैश की वैल्यू जो 1 है इसका कनेक्शन हमने यहाँ से किया हुआ है. तो 0 प्लस 1 का रिजल्ट होगा 1 और क्योंकि नॉर गेट है इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. 0 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और ये वाला 0 कनेक्शन यहाँ पर जो इस कनेक्शन से आएगा 0. 0 प्लस 0 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1. सो प्रेजेंट स्टेट हमने 0 लिया था, नेक्स्ट स्टेट भी 2-3 बार और कभी कंडीशन. राइट. तो ये 0 फिर यहाँ पर आएगा तो 0 प्लस 0 0 1. ये 1 यहाँ पर आएगा. 0 प्लस 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0. तो अब आप इसको कितनी ही बार एग्जीक्यूट करो तो जनरेट होता चला जाएगा और यहाँ कंडीशन को जब किसी भी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दैट मीन्स प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट स्टेबल हो जाए, वो अपने आउटपुट को चेंज ना करे, तो ऐसे सिचुएशन को स्टेबल कंडीशन बोला जाता है. और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट वैल्यू भी हमारे पास मिल रही है दैट इज 0 का 1 0 का 1. सो हमें ये हैंडल करना है कि अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 है. जो हमने यहाँ पे लिया था प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही हमें मिल रही है. से हम प्रेजेंट स्टेट अगर 1 लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेट भी हमें फिर से 1 मिलेगी. वो भी हम देख लेते
अब हम क्यू में प्रेजेंट स्टेट 1 लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेट क्या बनती है। सो प्रेजेंट स्टेट अगर 1 है तो उसके रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0। इस वाले सिग्नल में एस के साथ दूसरा इनपुट है 0, तो यहाँ पर जाएगा 0 0 का और होता है 0 और 0 यहाँ पर आया 1, इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जाएगा 1 प्लस 1 1 कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से ये 0 फिर यहाँ पर जाएगा 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट अगेन 1, और ये 1 फिर से इस लाइन से कनेक्शन है यहाँ पर, तो 0 प्लस 1 1 कॉम्प्लीमेंट अगेन 0। तो यहाँ पर अब आप कंटिन्यूसली बार बार भी अगर हर एक क्लॉक पल्स की राइजिंग एज पर इस तरह के इनपुट की प्रोसेसिंग करते हो तो ये 1 1 ही मिलने वाला है, और क्यू डैश में इसका हमेशा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ही मिलने वाली है। इसका मतलब ये कि अगर आपने 0 दिया है तो 0 1 रखा हुआ है फ्लिप फ्लॉप में, तो 1 ही मिलने वाला है। ये कंडीशन कहलाती है नो चेंज कंडीशन। So I hope you getting my point कि SR फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स के बेस पर अगर हम S और R में 0 0 सप्लाई करते हैं और फ्लिप फ्लॉप की अगर प्रीवियस स्टेट 0 है, so next state will remain 0. If the previous value of flip flop is 1, the next state will remain 1, and this become the no change condition of the flip flop. Now let's examine the second condition, कैसे फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाता है। नेक्स्ट इज, हम लोग देख रहे हैं रीसेट कंडीशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। सो एस इज 0, आर इज 1। यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशंस हमारी रीसेट होने वाली है। फ्लिप फ्लॉप में यदि आप 0 रखते हो तो वो भी 0 हो जाएगा, अगर आप 1 रखते हो तो वो भी 0 ही हो जाएगा। दोनों ही केस में फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट 0 ही मिलने वाली है। तो देखते हैं कैसे पॉसिबल है ये। क्यू दैट इज प्रेजेंट स्टेट अगर हम सपोज 0 रखते हैं, सो 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1, देन इस 0 का कनेक्शन इसके साथ है और इस 1 का कनेक्शन इसके साथ है। तो पहले हम इस गेट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ये 1 इसके साथ जाएगा, तो 0 प्लस 1 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ये 0 इसके साथ आएगा, 0 प्लस 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, अगेन ये 1 इस कनेक्शन के कारण इस और नॉर गेट में जाएगा, 0 प्लस 1 बिकम 1 एंड देन कॉम्प्लीमेंट बिकम 0, then 0 will reach in this NOR gate, then 0 plus 0 becomes 0, and due to the complement 0 का complement हो जाएगा 1। Now you can see it is the stable conditions। अब फ्लिप फ्लॉप अपने नॉर्मल आउटपुट को नहीं बदल रहा है, so this is called stable condition। 0 0 0 1 that means 0 का complement 1, 0 का complement 1, 0 का complement 1, this is called again the stable condition। अब इसको आप फाइनली एग्जीक्यूट ना भी करें तो आपको पता चल गया है कि फ्लिप फ्लॉप ने अपनी स्टेट को स्टेबल कर लिया है, अब वो फ्रिक्वेंटली बदल नहीं रहा। सो यदि आपने फ्लिप फ्लॉप में 0 प्रीवियसली स्टोर किया था तो आपको रिजल्ट में भी 0 ही मिला है। आप देख सकते हैं प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट सेम है, अगेन प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट फिर से सेम है, तो इसे हम कहते हैं रिसेट कंडीशन। तो ये तो हुआ 0 के बेस पर। अब हम देख लेते हैं कि यदि हमने फ्लिप फ्लॉप में प्रीवियसली अगर 1 रखा हुआ है या किसी प्रीवियस कैलकुलेशन का रिजल्टेंट अगर 1 है तो क्या वो 1 चेंज होता है या नहीं होता है, ये हम लोग देख लेते हैं।
सो एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है, राइट। हमने फ्लिप फ्लॉप में प्रीवियसली 1 स्टोर करके रखा हुआ है। ये जो है प्रेजेंट स्टेट है जो कि प्रीवियस स्टेट बनाती है, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 है, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आने वाली है। कनेक्शन देख लीजिए, क्यू डैश दैट इज 0, 0 इस कनेक्शन से यहाँ पर आएगा, और ये 1 इस कनेक्शन से यहाँ पर आएगा। इस नॉर गेट के अंदर 0 प्लस 0 का रिजल्टेंट आएगा। सो 0 प्लस 0 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। ये 1 यहाँ पर आएगा, 0 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। जस्ट वेट। अगर हमने प्रेजेंट स्टेट 1 रखी हुई है, प्रेजेंट स्टेट अगर 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 0। इस 1 को यहाँ पर लो, तो 0 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 हमने यहाँ पे दिया। जीरो प्लस 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, ये 1 यहाँ पर आया। 0 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया, सॉरी, तभी ये रिसेट नहीं हो पाया। जस्ट वेट, हमने कंडीशन बदल दी थी। एस 0 है, आर की वैल्यू 1 है, सो हमें आर की वैल्यू 1 रखनी है। ऑल राइट, सो एस इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 1। स्टेट अगर 1 है तो हमें देखना है नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। प्रेजेंट स्टेट 1 है तो उसका करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट वैल्यू विल बी 0, राइट। अब हम चेक करते हैं, ये 0 यहाँ पर होगा और ये 1 यहाँ पर होगा। सो 0 प्लस 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, ये 1 यहाँ पर आएगा। 1 प्लस 1 1, कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 0 0, कॉम्प्लीमेंट 1, 1 प्लस 1 1, कॉम्प्लीमेंट 0। क्यू की वैल्यू अगर आपने 1 रखी है, आर की वैल्यू अगर 1 है तो इसे रिसेट होना चाहिए। ये हुआ 0। एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1। फ्लिप फ्लॉप में अगर प्रीवियसली 1 स्टोर है दैट मीन्स सिग्नल अपोजिट है। ये आर होगा और ये एस होगा, राइट। आर की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू 0। इसमें हम करके देखते हैं। यदि हमने 1 रखा हुआ है प्रीवियस स्टेट में और ये है 0,
तो 1 0 का रिजल्टेंट होगा 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा 0। ये 0 यहाँ पर 0 प्लस 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1, फिर यहाँ पर आएगा तो 1 प्लस 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0, फिर ये 0 यहाँ पर आएगा 0 प्लस 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1, फिर ये 1 यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0, फिर ये 0 यहाँ पर आएगा 0 प्लस 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1। तो आप देख सकते हैं कि यदि हमने 1 स्टोर किया है प्रीवियसली तो नेक्स्ट स्टेट 0 हो चुकी है, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0, और अब 0 ही हमें मिलता चला जा रहा है। ये हो गई है फ्लिप फ्लॉप की स्टेबल कंडीशन। और अगर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्लिप फ्लॉप रिसेट हो चुका है। सो प्रीवियसली हमने सिग्नल उल्टे लिए थे, इस कारण से वो रिसेट नहीं हो पा रहा था। आर सिग्नल ऊपर होगा, एस सिग्नल नीचे होगा, राइट। ये कहलाती है रिसेट कंडीशन। तो अगर आपने 0 दिया है तो भी फ्लिप फ्लॉप रिसेट होगा, अगर आपने 1 रखा हुआ है फ्लिप फ्लॉप में प्रीवियस स्टेट पर तो भी उसका रिजल्टेंट 0 ही मिलेगा, और इसी कंडीशन को हम रिसेट कंडीशन कहते हैं। अब हम एक कंडीशन और देख लेते हैं, सेट कंडीशन। सेट कंडीशन में हम s की वैल्यू 1 रखेंगे और r की वैल्यू 0 रखेंगे। सो s की वैल्यू हम रखने वाले हैं 1 और r की वैल्यू रखने वाले हैं 0। फ्लिप फ्लॉप में हम प्रीवियसली कोई भी वैल्यू स्टोर करें, अल्टीमेटली वो सेट ही होने वाला है। सो हम पहले 0 रखकर देखते हैं। यहाँ पर होगा 0, यदि हम उसके प्रेजेंट स्टेट में 0 रखते हैं तो ये सेट होना चाहिए, मतलब अगला आउटपुट 1 आना चाहिए, राइट। 0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर 1 होगा। अब देखते हैं इसका कनेक्शन, क्यू डैश का कनेक्शन इस लाइन पर है तो यहाँ पर आएगा 1 और 1 के साथ आएगा 0। 0 प्लस 1 और गेट है 1 और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0। ये हुआ 0, ये 0 यहाँ पर आएगा 1 प्लस 0 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, फिर ये 0 यहाँ पर आएगा, ये चेंज करेगा 0 प्लस 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1, ये 1 यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0। अब ये 0 यहाँ पर आएगा 0 प्लस 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1, ये 1 यहाँ पर आएगा तो 1 प्लस 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0। अब आप देख सकते हैं ये वापस से स्टेबल हो चुका है, यहाँ पर हमें 1 1 मिलना स्टार्ट हो गया और यहाँ पर हमें 0 0 मिलना स्टार्ट हो गया। अगेन फ्लिप फ्लॉप स्टेबल कंडीशन में आ चुका है। अब हम इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे रोक देंगे और नेक्स्ट स्टेट के बेस पर हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि फ्लिप फ्लॉप सेट कंडीशन में आ चुका है। तो हमने देखा कि यदि हमने 0 रखा था तो हमें 1 मिलना स्टार्ट हो गया है। तो प्रेजेंट स्टेट 0 थी, नेक्स्ट 0 हुई, बट अगली क्लॉक पल्स में 0 कन्वर्ट हो गया 1 में और फिर ये स्टेबल हो गया। तो एक दो सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि वो 0 मिले, बट आपको मिनिमम 3 से 4 स्टेप आगे बढ़ना है, तब आप उसको स्टेबल मान सकते हैं, क्योंकि उसको रिसेट होने में, सैचुरेट होने में 2-3 क्लॉक पल्स तो मिनिमम लगती है, इसलिए हमें उससे मिनिमम 2-3 स्टेप आगे बढ़ाना होता है। तो आप इसका जो प्रोसेसिंग करते हो 0 और 1 का कनेक्शन के बेस पर मिनिमम 3 से 4 बार जरूर करें, तभी आप उसकी स्टेबल कंडीशन पहचान पाएंगे। अदरवाइज एक या दो एग्जीक्यूशन में आप उसकी स्टेबल कंडीशन नहीं पहचान पाओगे, राइट। तो ये हुआ सेट कंडीशन। अगर 0 है तो भी आपको 1 मिलने वाला है और अगर 1 है तो भी आपको 1 ही मिलने वाला है, इसको हम कहते हैं सेट कंडीशन।
अब एक कंडीशन और देख लेते हैं जो कि डोंट केयर कंडीशन है। अब डोंट केयर कंडीशन या रेस कंडीशन या प्रोहिबिटेड कंडीशन, हम इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस दोनों सिचुएशन में प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट इनका मैच नहीं हो पाता है। कभी वो जीरो बनती है, कभी वन होती है, कभी जीरो, कभी वन। आप कितनी क्लॉक पल्स को यूज करके उसका कैलकुलेशन करें, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट कभी स्टेबल ही नहीं हो पाती है। तो भी कैसे होता है, यदि हमें अनस्टेबल स्टेट बनानी है तो हमें दोनों हाई देने होते हैं, दैट इज वन और वन। यदि हम प्रेजेंट स्टेट सपोज जीरो रखते हैं और इससे रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट हमें वन मिलता है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेट क्या बनती है। इस वन का कनेक्शन यहाँ पर आएगा और इस जीरो का कनेक्शन यहाँ पर आएगा। इस और नॉर गेट में वन प्लस वन वन और कॉम्प्लीमेंट जीरो। ये जीरो का कनेक्शन यहाँ पर, वन प्लस जीरो वन, कॉम्प्लीमेंट जीरो। देखिए नेक्स्ट स्टेट में ही आपको यहाँ पर डोंट केयर कंडीशन बन गई है, इनवैलिड कंडीशन बन चुकी है कि नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। यदि नॉर्मल में जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट में वन आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। फिर से हम इसको प्रोसेस करते हैं। ये जीरो यहाँ पर गया, वन प्लस जीरो वन, कॉम्प्लीमेंट जीरो। ये जीरो यहाँ पर आया, वन प्लस जीरो वन, कॉम्प्लीमेंट अगेन जीरो। देखिए दोनों तरफ अगर जीरो जीरो है तो ये पॉसिबल कंडीशन नहीं है, दैट इज इनवैलिड कंडीशन। अगर फ्लिप फ्लॉप में जीरो है तो उसका कॉम्प्लीमेंट वैल्यू हमेशा वन होना चाहिए, और ये कंडीशन हमेशा चलती रहेगी। दैट मीन्स यहाँ पर भी जीरो होगा और यहाँ पर भी जीरो होगा। सो ट्रांजिस्टर ना ही जीरो वोल्ट से सैचुरेट हो पाता है और ना ही 5 वोल्ट से सैचुरेट हो पाता है। इस कंडीशन को कहा जाता है रेस कंडीशन, दैट इज डोंट केयर कंडीशन। हमें नहीं पता है कि उसके अंदर जीरो जा रहा है या वन जाने वाला है, इसलिए इस कंडीशन को प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है। और कभी भी दोनों कंडीशन में हम इसमें हाई सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते। ये कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, ये कभी भी हम सर्किट में अप्लाई नहीं करते, इसलिए इसको प्रोहिबिटेड कंडीशन नाम दिया गया है। ताकि क्योंकि इसमें फ्लिप फ्लॉप ना सेट हो पाता है ना रीसेट हो पाता है। तो ये तीन स्टेप ही हम हमेशा फ्लिप फ्लॉप में एग्जीक्यूशन के लिए देते हैं, और जब भी इनकी सर्किटरी बनती है तो हम इसके लिए ऑप्शन नहीं देते कि दोनों एस और आर टर्मिनल पे हम वन वन अप्लाई करें। दिस इज ऑल अबाउट द एस आर फ्लिप फ्लॉप। जो हमने ट्रूथ टेबल बनाया था उसके बेस पर इस तरह से उसका एग्जीक्यूशन होता है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी हमने एक फ्लिप फ्लॉप फिनिश किया है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस करें। अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करें।